हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी और आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, लाइट, सनलाइट और सम अदर सोर्स, ऑल दीज हैव वेव कैरेक्टर। ठीक है, हमने इसका स्टडी की, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा, बट हमने देखा कि ये जो थ्योरी है कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दीज आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to study what are black body radiations, photoelectric effect, and then we will explain how these phenomena can be explained by some other theory and how you can say these are the limitations of electromagnetic wave theory. Dear students, look at black body radiation. ठीक है, black body you can say a particular body, ठीक है, which may be black in color, but basically this is the body which can absorb all the radiations when fallen on it. अगर हम ऐसी बॉडी पे कोई रेडिएशंस डालें, लाइट डालें, then it can absorb almost all the radiations. और when such type of body is being heated, अगर हम ऐसी किसी बॉडी को हीट करते हैं, then it can emit all type of radiations present in the electromagnetic spectrum. ठीक है, so such body is known as black body and the emitted radiation is called black body radiation. I written here, if the substance being heated is a black body, then the radiation emitted is called black body radiation. Obvious है. Now how can you say what is the black body? It's a perfect absorber and perfect emitter or radiator of the energy of all the frequencies. You can say black body is a such type of body which when heated it can emit all type of radiations. Now according to electromagnetic wave theory, when energy is emitted or absorbed, ठीक है, when energy is emitted or absorbed, it continuously, that means अगर कोई सोर्स, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अगर कोई सोर्स लाइट इमिट कर रहा है, मान लीजिए कैंडल बर्न करी आपने, कैंडल इग्निटेड हो गई, तो कैंडल से जो लाइट निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअस निकल रही, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन टू वेव्स, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द टू वेव्स, टू रेज और लाइट, जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, energy is emitted or absorbed continuously. That means energy always propagates continuously. That is energy of any electromagnetic radiation. It's proportional to intensity. This is another important point. According to this theory, energy of any electromagnetic radiation is proportional to the intensity, which is square of amplitude. ठीक है? And independent to the frequency or wavelength, independent the frequency or wavelength of the radiation. ठीक है, that is radiation emitted from the black body should have the same color or intensity, should vary with heat. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम हीट कर रहे हैं किसी ब्लैक बॉडी को और वहां से कोई कलर इमिट हो रहा है तो वो कलर सेम रहेगा, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी वेरी करनी चाहिए। अब जरा इसको दूसरे वे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सोच रहा था आप डिस्टर्ब ना, इसमें लिख दिए यहाँ पे। नाउ देखिए ध्यान से, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप इतना मेंशन कर दीजिए। इन्होंने कहा सपोज यू हैव अ ब्लैक बॉडी, दिस इज द ब्लैक बॉडी, this is black body and it is being heated, then it can emit radiations, rays. ये जो rays और radiations emit होंगे बेटा, rays और radiations ये जो emit होंगे, पहली बात according to electromagnetic wave theory ये continuous emit होंगे, कोई गैप नहीं होगा, continuously emitted. सेकेंडली जो एनर्जी यहाँ से इमिट होगी
energy emitted is found to be directly proportional to intensity of the radiation. Intensity, और इंटेंसिटी जो होती है अगर आपको ना पता लगे, इंटेंसिटी इज फाउंड टू बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये एम्पलीट्यूड है. अगर मैं इसी वेव को ऐसे दिखाऊं, सेम वेव, तो आप देखोगे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इंटेंसिटी भी बढ़ गई. नंबर ऑफ वेव्स, दिस इज द वन वेव एंड हियर अगर आप इतनी डिस्टेंस में देखो तो 4-5 वेव आ गई, 1 2 3 4. इंटेंसिटी बढ़ गई अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. सेकेंडली जो यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रहा है इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे. ठीक है. अब आपको समझना ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहना चाह रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी चाह रहे हैं कि अगर आप इसकी स्टडी करते हो, आप कहते हैं यहाँ से जो रेडिएशन निकल रहा है आप इसे हीट करे जा रहे हो. मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ से रेड कलर निकल रहा है, ये रेड कलर की लाइट जा रही है बाहर. ठीक है. अगर यहाँ से रेड कलर बाहर जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर पर ये लाइट रेड होगा. ठीक है. थोड़े से हायर टेम्परेचर पर ये मॉडरेट रेड होगा. ठीक है. और बहुत हाई टेम्परेचर पर वी कैन से कि ये डार्क रेड होगा. ये कहते हैं कलर चेंज नहीं होते हीट करने से. ठीक है. हीट करने से सिर्फ निकलने वाले कलर की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड चेंज होता है. जबकि प्रैक्टिकली अगर आप देखो, प्रैक्टिकली क्या है जरा समझना. आप लोगों ने देखा होगा, क्या आप में से किसी ने आयरन बार को हीट करते हुए देखा है? आयरन बॉडी को हीट करा है? अगर आपने इसको हीट करा तो आपने जरूर देखा होगा कि स्टार्टिंग में इसका कलर रेड होता है, जैसे ही ये बढ़िया हीट हो जाता है. इसके बाद जब हीटिंग कंटिन्यू रहती है तो इस रेड से कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. बीच में व्हाइट भी हो जाता है, बाद में ब्लू भी हो जाता है. अकॉर्डिंग टू विवग्योर, रेड से ये वायलेट तक जा सकता है और टेम्परेचर बढ़ाना है. और अगर कलर चेंज होंगे तो इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब उससे निकलने वाले रेडिएशन की ये भी चेंज होती है. बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज होगी, कलर सेम रहेगा, रेडिएशन सेम निकलेंगे. मतलब किसी सोर्स को अगर हम हीट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स अ लिमिटेशन. सो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. आपका आंसर बनेगा द रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी व्हेन इट इज हीटेड. It's known as like black body radiation. Now, how can you say black body radiation is a limitation? You can say black body radiation से जो emitted हो रहा है radiation according to electromagnetic wave theory, it should have only wave nature. That means when we increase temperature of the black body, only intensity of the emitted color should be changed. Frequency and wavelength does not change. But practically when we heated iron bar, we can see when we start heating, it is a red and then at last its color will change. Color changing phenomena shows that their frequency and wavelength also changes with the temperature. This is the black body radiation phenomena, and that's why it's a limitation of the electromagnetic wave theory. आगे बात समझ में. Now you can plot a graph also for the variation of intensity. जैसे आप देखो, this is the intensity and this is the wavelength. बेटा ये देखा गया कि वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, इंटेंसिटी इधर बढ़ेगी. मान लीजिए कोई एक बॉडी T1 टेम्परेचर पर है. ठीक है. इस बॉडी पे जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम करते जाओगे, मतलब किसी गिवन टेम्परेचर अगर वेवलेंथ कम होती है तो पहले इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, फिर इंटेंसिटी कम होती जाती है. अगर किसी हाई टेम्परेचर पर है तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. पहले वेवलेंथ कम होने पर इंटेंसिटी बढ़ती है और उसके बाद एक मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद, ठीक है, फिर इंटेंसिटी घटने लगती है जब वेवलेंथ कम होती है. मतलब वेवलेंथ के डिक्रीमेंट के साथ साथ
पहले वेवलेंथ अगर हम कम करते हैं तो इंटेंसिटी एक बार बढ़ती है फिर कम होती है, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना which cannot be explained by electromagnetic wave theory. So scientists look for the next theory, and this is the Planck's quantum theory. Okay, but there is also another more limitation, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करके भेज रहा हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आप इसे समझ लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स।